Jai Hind students, after understanding the different types of mode of asexual reproduction, we are moving towards the specific type. One by one I am going to discuss here the different types of asexual reproduction. Definitely it should be done with the help of examples plus diagrams. I hope you are carrying your notebook and pencil with you and you are going to draw the diagram with me. In board exams, many times it happens, suppose we forget that a definition. हम भूल गए ये fission क्या है, binary fission क्या है, multiple fission क्या है. Then you can, but you remember the diagram. तो diagram itself will work. Diagram अपने आप में एक explanatory form है किसी भी definition को समझाने का. So it will definitely work if you don't write the definition but you draw a proper diagram, neat label diagram, then definitely it will work. Now we are moving the first type of asexual reproduction, that is fission. Fission इसका verbal meaning समझने की कोशिश कीजिए. Fission का मतलब ही होता है breakdown. Breakdown और किसी भी organisms या cell का break होना. Break होके develop हो जाना different daughter cells में या एक नए organism में. Fission is of two types. First is binary fission. Binary fission जैसे कि टर्म से समझ में आता है binary. Binary means it's related with two. Binary. ठीक है. I'm going to explain it with the help of diagram. I hope you are carrying your pencil and notebook. और ये binary fission protozoans में देखा जाता है usually paramecium and amoeba. तो I will try to explain with the help of diagram. आप लोग भी मेरे साथ diagram बनाएंगे. This is a typical amoeba, and after getting the maturity, the cells start dividing. This is nucleus. Nucleus है ये. This is cytoplasm. This is a typical amoebic matured cell. After getting the maturity, this cell is started dividing for the purpose of reproduction. सबसे पहले डिवीजन जो है यहाँ से इनिशिएट होता है. This is the nucleus. Nucleus है ये अमीबा का. इसको मैं पिंक से कर देती हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा. ओके. और ये जो है स्लाइड ग्रोव फॉर्मेशन हो सकता है दिस वन. ठीक है. नाउ आफ्टर सम टाइम वी कैन सी द चेंजेस इन amoebic cell. Now we can see this clear growth. This is the formation of growth. ठीक है. और न्यूक्लियस की जो कंडीशन है ये और ज़्यादा डीपन हो जाएगा. ये जो कर्व है ये आप देख सकते हैं और ज़्यादा धीरे धीरे डीप हो गया है. ठीक है. दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज ग्रो. क्लियर. नाउ एज द टाइम पासेस दिस ग्रो बिकम मोर डीपर. और ज़्यादा जो है ये ग्रो डीप हो जाएगी. इट्स अबाउट टू सेपरेट. ठीक है. और जो न्यूक्लियस है ये ऑलमोस्ट इस तरह से सेपरेशन इनका ऑलमोस्ट हो चुका है. इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है. ये और ज़्यादा डीप होता जाएगा और ये धीरे से यहाँ पे इस तरह से हम सेपरेशन देख सकते हैं. Cell is still linked with plasma membrane, but you can see the two nuclei which are separated. इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे and then result is the formation of two daughter cell. ठीक है. This is daughter cell. These are two daughter cells. This is the final result of binary fission. इसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स. अब कई बार हर साल हर बैच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दे आर नोन एज डॉटर सेल, व्हाई नॉट सन सेल. तो
डॉटर सेल फीमेल वर्ड है डेफिनेटली, फेमिनाइन वर्ड है, सॉरी, ठीक है। तो डॉटर सेल्स फर्दर गेट मैच्योरिटी, इट विल अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू अनदर डॉटर सेल, इसलिए यहाँ पर इनको डॉटर सेल्स कहा जाता है, ठीक है। आई होप दिस बाइनरी फिजन हैज बीन क्लियर टू यू। दिस इज एन एग्जांपल, दिस काइंड ऑफ बाइनरी फिजन और दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यू कैन सी इन अमीबा। मैच्योर्ड सेल फिर से देख लेते हैं एक बार। मैच्योर्ड सेल यहाँ पे ग्रो फॉर्मेशन स्लाइड हो गया, मतलब न्यूक्लियस विल स्टार्ट डिवाइडिंग फर्स्ट, ग्रोथ जो है धीरे धीरे डीप हो रही है और ज्यादा डीप हो रही है, एंड अटैचमेंट ऑफ टू सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल। अनदर टाइप ऑफ फिजन वी कैन सी, दैट इज मल्टीपल फिजन, दैट इज मल्टीपल फिजन। This kind of fission we can see in Plasmodium. ये वाला फिजन, बाइनरी फिजन हम अमीबा में देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो फिजन है ये हम प्लाज्मोडियम में देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ऑब्वियसली बाइनरी फिजन दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, बाइनरी हो या मल्टीपल हो, ऑल काइंड ऑफ फिजन है इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम इज अ काइंड ऑफ पैरासाइट, ये प्रोटोजोन है, एक पैरासाइट है which lies inside the mosquito। अब प्लाज्मोडियम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले we will see the type of multiple fission it occurs। इतने सारे यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं and this is known as cyst। सिस्ट बोला जाता है, और ये यहाँ पे जितने भी हैं these are nuclei। nuclei is a plural word of nucleus। these are nuclei। और जैसे ये सेल मैच्योर हो जाती है और ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, then it will burst out। ये इस तरह से बर्स्ट हो जाती है और जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, इट विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द सेल एंड ग्रेजुअली टर्निंग इनटू एन एडल्ट प्लाज्मोडियम। इस तरह से जो है ये बस्ट आउट हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में अगर हम बात करें, एज आई वाज टेलिंग यू दैट it is parasite present inside the mosquito। और प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। फर्स्ट होस्ट इज मॉस्किटो एंड सेकंड होस्ट इज कॉर्डेट, द ब्लड ऑफ कॉर्डेट और ह्यूमन ब्लड। अब क्या होता है, मॉस्किटो एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस के अंदर ज्यादातर ये रहता है। अब फीमेल एनाफिलिस ने बाइट किया, बाइट क्यों करती है, ये ब्लड क्यों सक करती है फीमेल एनाफिलिस? टू गेट प्रॉपर नरिशमेंट फॉर देयर एग्स। अपने एग्स लेने के टाइम में इट रिक्वायर्ड मोर एंड मोर नरिश डाइट, और वो नरिश डाइट उसको ह्यूमन ब्लड से मिलती है। अब ह्यूमन ब्लड को जब उसने सक किया, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तभी वो सकिंग स्टार्ट होती है। तो उस ड्यूरेशन में सलाइवा के साथ ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है इट एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन ब्लड में एंटर कर जाता है और ह्यूमन ब्लड में ही अपना सेकेंड फेज ऑफ साइकिल कंप्लीट करता है। सेकेंड फेज क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में ही रिप्रोड्यूस होता है और ये इस तरह से सिस्ट फॉर्मेशन होता है। लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इनसाइड दिस सिस्ट। आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी दिस सिस्ट बस्ट आउट and all these nuclei started moving inside the blood and gradually they developed and they turn into a matured organism or matured plasmodium। Plasmodium कौन सा disease spread करता है? I am asking which disease is caused or which disease is spread by Plasmodium। After watching this video you can give your answer through live chat, ठीक है। और ये जो ह्यूमन ब्लड में जब इस तरह से न्यूक्लियाई रिलीज हो जाते हैं तो ग्रेजुअली इनके नंबर्स बढ़ने लगते हैं और जो ह्यूमन बींग्स है, जो सफरर है, उसको शिवरिंग होने लगती है, उसको ठंड लगने लगती है और उसको
आई फिगर हो जाता है। इट मीन्स दैट द डिवीजन स्टार्टेड, और डिवीजन किस टाइप का है? मल्टीपल फिजन। Why multiple fission? Because more than 2 nuclei are releasing at one time. एक बार में ढेर सारे more than 2 nuclei are releasing. अब क्वेश्चंस जो है, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? कई बार डिफरेंसेस के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कई बार हमें इसी को डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करना होता है। विदाउट डायग्राम दिस चैप्टर इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, कंप्लीट होगा ही नहीं बिना डायग्राम्स के। बाइनरी फिजन एक बार देख लेते हैं। मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है। यहाँ पे मदर सेल क्या हो रही है? मदर सेल itself give birth to more than 2 daughter cells. बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल बन रही है, इसमें more than 2 डॉटर सेल्स बन रही है। सेकेंड डिफरेंस क्या रहेगा? मदर सेल itself divided into 2 cells. मदर सेल खुद डिवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मदर सेल की डेथ हो गई है। क्यों डेथ हो गई है? क्योंकि यहाँ पे बस्ट हो गई, तो डेफिनेटली ये जो मदर सेल है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा, और ये ढेर सारे न्यूक्लियाई जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज हो गए, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही दो है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फिजन वर्ड से समझ में आ रहा है, स्प्लिटिंग या डिवीजन ऐसे समझ के हम याद रखेंगे। 2 टाइप्स याद रखेंगे, डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल दैट इज बाइनरी फिजन, डिवाइडेड इनटू मोर डॉटर सेल दैट इज मल्टीपल फिजन। अमीबा है, पैरामीशियम है, लेशमानिया है, these all are protozoans and they of this method of reproduction. I hope first type of fission or binary fission and multiple fission are clear to you.